آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں، جن کے پاس خدا کا پاک کلام ہے اور جن کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے وہ اپنے کانوں کو بھی کھولیں اور اپنے دلوں کو بھی کھولیں اور سنیں۔ خروج کی کتاب مقدس اس کا 3 باب 13ویں آیت سے ہم شروع کریں گے، 15ویں آیت تک پڑھیں گے۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب تک میرا یہی نام ہے، سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آج کا موضوع بھی ہم جاری رکھیں گے جو پہلے ہم نے اتوار کی عبادات میں موضوع پر خدا کا کلام سنا، جیزس از گاڈ، 5th پارٹ، یسوع مسیح خدا ہے، 5واں حصہ۔ اور بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا کہ جب خدا نے موسیٰ کو پکڑا، بھول گیا اپنی ویژن کو، بھاگ گیا، کام میں لگ گیا، بچوں میں پڑ گیا، دوبارہ اپنی رویا کو تو بھول گیا، لیکن کاموں میں، خاندانی ذمہ داریوں میں زیادہ پھنس گیا۔ تو خدا نے جسے چنتا ہے اسے چھوڑتا نہیں، یہ کیسا اس کا بھاری فضل ہے۔ اس وقت موسیٰ کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی، 40 سال اندر جذبہ تھا، رویا، جوش، غیرت خدا کی، خدا کے لوگوں کی۔ جب دیکھا کہ آزمائش آ گئی ہے، خوف آ گیا ہے، ڈر زندگی میں آ گیا ہے، بچنا چاہتا ہے، بھاگ گیا ہے، سسرال چلا گیا ہے، بال بچوں میں پھنس گیا ہے، کام میں لگ گیا ہے، بھول گیا ہے کہ خدا نے مجھے کیوں چنا، کیوں مجھے بچایا ہے۔ لیکن پھر خدا بولتا ہے کہ جا، جہاں سے بھاگا ہے، جو کچھ چھوڑا ہے، جس رویا کو بھولا ہے، چل، رویا تازہ ہوتی ہے، وہاں پھر جا، میرے لوگوں کو چھڑا، میں نے تمہیں چنا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، اب یہ بھی اسے پوچھنا پڑا، کیا بتاؤں، کس نے مجھے بھیجا ہے؟ تو خدا نے کہا کہ جا کے تم یہ کہنا کہ میں جو ہوں
सो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और ये भी कहना कि मुझे तुम्हारे बाप अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा ने भेजा है, ताकि एक जो नस्ल है, जो तारीख है, वो जारी रखे कि मैं वो ही खुदा हूं। खुदा हमेशा उसने अपना आप जाहिर किया, लेकिन खुदा तारीख का खुदा भी है और खुदा नस्लों का खुदा, ताकि कोई मुगालते में ना रहे, क्योंकि बहुत सारे खुदा शैतान ने उठा खड़े किए थे। मिस्र में तो बहुत ज्यादा खुदा थे, और जो बुत परस्त लोग, मैंने कई दफा आपको बताया, फिर बताता हूं, 3.5 करोड़ खुदाओं को मानते थे। मिस्र में तो 10 बड़े खुदा थे, देवता उनके खुदा, जो 10 जैसे थियोलॉजियन लोग आफतें भी कहते हैं, आफतें तो दूसरे लोगों के लिए हैं, हाँ, और मौजज़े ईमानदारों के लिए होते हैं, खुदा का जलाल जाहिर होता है। और वो 10 देवता थे, जो 10 आफतें हम कहते हैं, उसका मुताला करें, वो बड़े देवता थे, और बड़े देवताओं को खुदा ने शिकस्त दी अपनी कुदरत से, मूसा के वसीला से, और कहा जाके बताना। इब्रानी मतन में मैंने आपको बताया, फिर दोहराता था कि फाउंडेशन जब आपको याद रहेगी, फिर हम आगे तामीर भी करते चले जाएंगे, इल्म इलाहियात की बातों को याद भी रखते चले जाएंगे। जो हिब्रू वर्ड यहाँ याहवे, ये दोनों अल्फाज इब्रानी के मतन में है, याहवे, दोनों कनेक्टेड लफ्ज हैं। और जिस खुदा ने कहा जाके बताना, खुदा ने कहा बताना, मैं जो हूं सो हूं, एलोहीम, सीगा जमा जिसमें कसरत है, तसलीस है, बाप, बेटा, रूहुल कुद्स, एलोहीम ने कहा जाके बताना। और यहां सिंगुलर माने लिए गए हैं, जाके बताना, याहवे, ताकि इस्राएल जान जाएं कि वो ही वाहिद खुदा। जब खुदा कहता है ना वाहिद बाइबल मुकद्दस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला है और बाप, बेटा, रूहुल कुद्स नहीं। वाहिद का मतलब ये है कि वाहिद खुदा जिसमें कसरत है, बाप, बेटा, रूहुल कुद्स है, लेकिन मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं। बहुत सारे तो खुदा थे बन गए हुए, आज खुद सेल्फ मेड शैतान ने इतने खुदा बना दिए, इंसान के सामने रख दिए। इसलिए खुदा ने उसे अलग शनाख्त के लिए कहा, शनाख्त के लिए कहा, मैं वाहिद खुदा हूं। यानी अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, फिर आपको याद रहिए जो जिंदा सच्चा वाहिद खुदा, खालिक, मालिक कायनात को बनाने वाला है। ये नस्लदार नस्ल आपको याद रहे, यही मेरा नाम होगा, इसी का जिक्र होगा, ताकि पहचान कायम रहे, शनाख्त कायम रहे, सच्चे खुदा की शनाख्त जो है वो कायम रहे। नस्लदार नस्ल, मेरा यही नाम, यही होगा, यहोवा मेरा नाम होगा। और बाइबल मुकद्दस में मैंने ये भी आपको सिखाया था, फिर फाउंडेशन की बातें बताता हूं, कि जब तर्जमा हुआ हिब्रू से ग्रीक में, क्योंकि यीशु मसीह से पहले ही चंद सदियां जो यूनानी जुबान है वो इंटरनेशनल बन गई थी, उसका बड़ा असर हो गया था यीशु मसीह के आने से पहले ही। तो ये पूरा जो अहदनामा है पुराना है, इसे ग्रीक में तर्जमा हुआ ताकि लोग समझ जाएं, जान सके। और जो यूनानी जुबान में नया अहदनामा का तर्जमा हुआ इगोइमी, वहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ जब यीशु मसीह कहता है मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, इससे अब्राहम पैदा हो, मैं हूँ। जहां जहां यीशु मसीह ने हूँ लगाया है, इसका मतलब यीशु मसीह ने कहा
एगोहिमी, मैं एगोहिमी। इसका मतलब ही क्या है? वो ही तर्जमा जो यहोवा है, वो ही ग्रीक में एगोहिमी है, यानी खुदा है। और उसने कहा मैं जिंदगी की रोटी, मैं दुनिया का नूर हूं। और उसने जाहिर किया अपनी जुबान मुबारक से, एक दफा नहीं, क्योंकि एतराज उठता है कि यीशु मसीह ने कब कहा मैं खुदा हूं। हमने सीखा बाइबल मुकद्दस में एक दफा नहीं, कई दफा यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या हूं? खुदा हूं। अगर मुश्किल है तो उनकी जो तहकीक नहीं करते, मुश्किल है तो उनकी जो जाहिल है, मुश्किल है तो उनके लिए वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जो जुबान दानी को जानते नहीं है, सीखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तहकीक नहीं करते और अपने अंदर ख्वाहिश नहीं रखते, या खुदा ने उन पर जाहिर नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने तो एक से कई दफा कहा कि मैं खुदा हूं। फिर हमने एक और लफ्ज पर गौर किया जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो है खुदावंद। और हमने पढ़ा पिछले इतवार की इबादत में यूहन्ना की अंजील 13वां बाब 13वीं आयत में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम मुझे खुदावंद और क्या कहते हो? उस्ताद। तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो। और फिर कहा तुम खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। उसने कोई इनकार किया कि मैं खुदावंद हूं। लॉर्ड इंग्लिश में क्या है? लॉर्ड। और इसके लिए भी दो अल्फाज हमने सीखे थे पिछले इतवार की इबादत में कि जब हम हिब्रू में पढ़ेंगे तो फिर लफ्ज आएगा एदोनाई। खुदावंद के लिए लफ्ज क्या है? एदोनाई। क्योंकि यहूदी लोग याहवे इसलिए ज्यादा नहीं बोलते थे कि वो कहते थे कहीं तलफ़ुज़ गलत ना हो जाए, कहीं बेफायदा नाम ना हम ले लें। तो उसके मुकाबले में जब वो खुदा को पुकारते थे तो वो पुकारते थे एदोनाई, लेकिन उसके माने वो ही हैं कि खुदा वन। और आम जुबान में भी वो जब बातचीत करते खुदा का नाम लेना चाहते थे तो हैशम बोलते थे, हिब्रू वर्ड। हाशिम नहीं, हाशिम लफ्ज नाम फर्क है, हैशम हिब्रू वर्ड में। कहीं आप इसका कोई गलत नतीजा ना, हाशिम हेशम में फर्क है। मैं हेशम बता रहा हूं, हिब्रू। आम गुफ्तगू में खुदा का नाम लेते थे, इतना डरते थे कहीं हम गलत नाम ना ले ले, कहीं हम बेफायदा नाम ना ले ले। आम गुफ्तगू में वो कहते थे हेशम, यानी वो याहवे खुदा। और रसूमात में मजहबी तौर पर और दुआ में और प्रस्तश में जब नाम लेते थे रूहानी तौर पर तो वो पुकारते थे एदोनाई। और साल में सिर्फ एक दफा सरदार कायम कफारा के दिन में नाम जब यहोवा का पुकारता था वो भी पूरा नहीं लेता था, वो कहता था होली ऑफ होलीस, होली ऑफ होलीस, यानी खुदा इतना पाक कुद्दूस, ये भी उसका नाम है। फरिश्ते क्या कहते रहते हैं? कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, होली ऑफ होलीज, ये भी उसका नाम है। इतना पाक, इतना मुकद्दस नाम था। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं कि यीशु मसीह खुदावंद है। उसने कहा कि हाँ मैं हूं। इसका मतलब क्या है? मैं लॉर्ड हूं। और इसके माने हमने सीखे थे। लॉर्ड का मतलब क्या है? खुदावंद का मतलब क्या है? एडोनाई जो है और जो ग्रीक का तर्जमा हुआ उसमें खुदावंद के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ वो वह कीरस, खुदावंद के लिए। उर्दू में खुदावंद है, इंग्लिश में लॉर्ड है, लेकिन इन चारों के माने जो है एक ही हैं, आका, मालिक, हुक्मरान,
हाकिम, मास्टर के भी यही रूहानी मानों में मतलब था। मास्टर, आका, मालिक, खुदावन। बेशक दुनियावी लिहाज पर हाँ मास्टर जो टीचर होता है उसे कहते हैं, और रूहानी तौर पर भी यीशु मसीह इल्म इलाहियात के मास्टर थे, डॉक्टर थे, इल्म इलाहियात के मास्टर थे। वो जो फकीह फरीसी खुद मास्टर थे, खुद स्कॉलर थे, वो यीशु मसीह को कहते थे ऐ उस्ताद। बाइबल में स्कॉलर उसे खुद कहते थे ऐ उस्ताद, शागिर्द भी उसे कहते थे ऐ उस्ताद। वो इल्म इलाहियात, बाइबल मुकद्दस कि जब खुदा में यीशु मसीह को वो खुदा था बातें करते थे तो वो सारे हैरान। उन्होंने उस्ताद भी माना, रबी भी माना, रबूनी भी कहा, खुदावंद भी कहा, मास्टर कहा, आका कहा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह खुदावंद है, मालिक है, खालिक है, हाकिम है और बादशाह है। इसका मतलब यह है। और ये यीशु मसीह ने खुद कहा और कितनी बार कहा। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में हम सीख रहे हैं कि बहुत सारे ईमानदारों ने, रास्तबाजों ने, नबियों ने, पैगंबरों ने जो है वो पेशनगोई भी की, और पेशनगोई की खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि वो हाकिम है, वो बादशाह है, वो खुदावंद है। यशायाह नबी ने कहा, देखो एक बेटा बख्शा गया, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, और फिर क्या लिखा है, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप। और ये तकरीबन 700 साल पहले यशायाह नबी ने खुदा यीशु मसीह की मुबारक विलादत से पहले कहा। जब हम विलादत कहते हैं, यहाँ ये भी मुझे बात याद आती है, जब हम यीशु मसीह की पैदाइश कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अगर खुदा है तो वो पैदा किस तरह हो गया। यीशु मसीह पैदा उस तरह हुआ ही नहीं है जिस तरह कोई इंसान पैदा होता है माँ बाप के मिलाप से। नो नो नो, वो तो लिखा है कलमा था, इब्तदा में कलाम, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही खुदा था, और फिर कलील कट कहा गया। अगर कोई ना समझे तो ना समझे। और कलाम मुजस्सम हुआ, उसने सिर्फ जिस्म इख्तियार किया है, नूर से नूर जुदा हो गया। कलमा खुदा का जो उससे निकला, जो उसकी गोद में था, उसने जिस्म को इख्तियार किया, जैसे हम कहते हैं पैदा हुआ है। उस तरह तो पैदा हुआ नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं अव्वल भी हूं, मैं आखिर भी हूं। इसका मतलब है आई एम एगोइमी, मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं। और इब्रानियों के खत में एक मुकाशफा, इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि ना उसकी उम्र का शुरू है और ना उसकी उम्र का आखिर है। वो तो इब्तदा ही से था, और इब्तदा और आखिर तक भी वो ही होगा। और खुदा ने क्या कहा मूसा को कि जाके उनको बता दे यही मेरा नाम आखिर तक जिक्र नस्ल दर नस्ल होता रहेगा। ये नहीं यहोवा, ये नहीं खुदावंद, ये नहीं यीशु मसीह, ये नहीं खुदावंदों का खुदावंद, ये नहीं हाकम बादशाह जिसका जिक्र यशायाह नबी ने कहा है हाकिम होगा। बात तो है इंसान को समझने के लिए, किसी पर फजल ना हुआ हो या तहकीक ना की हो तो उलझन है। खुदा ने कोई बात उलझन में कभी नहीं रखी, कोई बात छुपा के, हर चीज बाइबल मुकद्दस में क्लियर है, साफ है, और समझने वाले के लिए
بالکل کیا ہے صاف ہے جو سمجھے. اور ایک میں حوالہ آج ایک اور دیتا ہوں. یسایہ نبی نے بھی پیشن گوئی کی. اور جب ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب نکالیں, پیدائش کی کتاب یہ بھی بہت بڑا مکاشفہ ہے. اس کا ہم نکالیں 49واں باب 49. کیوں میں کہتا ہوں انگلش میں؟ کیونکہ جو آج نئی جنریشن ہے اسے بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اردو, یہ پرانی اردو پرانی جو ہند سے بھی ہیں لکھے ہوئے, وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آج کی نئی جنریشن کو وہ ہند سے بھی نہیں آتے, ہے نا. جو انگلش کے ہیں نا 1 2 3 وہ تو اوپر لکھے آتے ہیں, لیکن جو بائبل میں پرانی اردو ہے نا, پرانی انگلش بھی ہے اور پرانی اردو بھی, اور نئے نئے لفظ آتے رہتے ہیں. یا میں یہ بھی ان کا مغالطہ نکال دوں کہ جب ترجمے ہوتے ہیں تو ترجمے کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کیا, کہ اچھی طرح زبان کو وہ سمجھ جائیں. شاید پرانی زبان میں یہ تھا, لیکن اور آسان ترجمے کے ساتھ یہ ہے اس کا مفہوم. یہ غور سے اس کا جواب سن لیں. اس کا مفہوم, اس کے اندر جو اس کی ماہیت ہے, اس کے اندر جو اس کے معنی ہے, وہ نہیں بدلتے. ترجمے کے ساتھ لفظ تو بدلیں گے. ہم لارڈ کہیں گے انگلش میں, ہم خداوند کہیں گے اردو میں, ہم ایدونائی کہیں گے ہبرو میں, اور ہبرو میں لوگ آج پڑھتے ہیں. بہت ساری زبان آج بھی زندہ ہے, پرانی زبان, اور وہ ہبرو بھی زبان پرانی بھی تھی, اور ہبرو پھر جدید بھی ہوگی. انگلش بھی پرانی, جو پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں یہ اولڈ انگلش ہے, یہ نئے لفظ ہیں انگلش کے. یہ تو سیکھنا پڑتا ہے. یہ تو جس کے اندر تحقیق ہو وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ لفظ, بلکہ میں کہتا ہوں, میں تو بعض اوقات بچوں کو یہ اردو کے ہند سے بھی سکھاتا ہوں, اور جب بولتا ہوں 49واں ہے نا, تو بعض اوقات بچوں کو نہیں سمجھ آتی. پھر میں ساتھ کیا کہہ دیتا ہوں 49 کہہ دیتا ہوں, تاکہ بچوں کو سمجھ آئے. پھر بائبل مقدس میں کئی لکھے ہیں, وزن کے پیمانے لکھے ہوئے, آپ کو سمجھانے کی دلائل پیش کر رہا ہوں. کنتار لکھا ہوا ہے نا, پڑھا ہوگا. مسکال لکھا, اور اگر ہم نے سیکھا ہی نہیں, ہم کہیں یہ کیا لکھا ہے, یا تو سیر لکھا ہونا چاہیے جہالت اگر ہوگی, یا تو من. ہم نے جو پڑھے تھے یعنی وزن کے پیمانے کیا پڑھا تھا, ماشا اور تولا. تالی کہنے پالچ ماشا ماشا تولا, تبھی وہ محاورے چلا. اب محاورے بھی چینج ہو رہے ہیں, ہے نا. اب نظام سسٹم ہی یہ پیمانوں کا کیا ہو گیا ہے, چینج ہو گیا. ہم نے پڑھا ہوا تھا پھر چھٹانک, پھر جناب پاؤ, پھر سیر, پھر من. تو آج کے بچوں کو پتا ہے, ان کو نہیں پتا. یہ کچھ اور ہی, وہ مجھے بھی نہیں آتا کیونکہ میں نے پڑھا ہی نہیں. تو ہم بچوں سے بھی کیا کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. ہاں, اگر سیکھنے کی ہمارے اندر خواہش ہو, اگر نیت صاف ہو,
تو ہم سیکھ جائیں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے یہ قنطار کیا ہے, ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی, یہ مسکال کیا ہے اس کی تو کوئی سمجھ نہیں آتی. تو سمجھنے کے لیے لوگوں نے ڈکشنریاں بھی بنائی ہیں, سمجھنے کے لیے استاد بھی خدا نے دیے ہیں, روحانی استاد بھی دیے ہیں, زبان دانی سیکولر زبان کے بھی استاد ہیں, اور تعلیم دی جاتی ہے اور زبانیں سکھائی جاتی ہیں. لیکن بات کیا ہے, اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ تو سیکھ سکتا ہے, لیکن جو سیکھنا ہی نہ چاہے, حق درمی پر اڑا رہے, وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتے کہ خدا ہے. آپ کو علم ہے, آپ کے نالج سے آپ کو دراتا ہوں علم ہوگا, لیکن شاید کبھی ذہن میں نہ آیا ہو. آپ کو پتہ ہے کتنے ملین, نہیں میں کہہ رہا, بلینز لوگ ہیں جو خدا کو خدا نہیں مانتے. غور کیا کبھی؟ ملین نہیں, 9 کروڑوں نہیں, 9 اربوں لوگ آج بھی اس دنیا میں ہیں جو زندہ خدا کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں, اور اس زمین پر ہیں. آپ کو نالج ہے, کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. تو پھر ہم کیا کریں کہ ہم بھی کہیں خدا نہیں, وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. بڑے بڑے اسٹیبلش کنٹریز, بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے ہوئے لوگ, بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں, ان میں سے یہ دلائل میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں ہے. یا تو وہ بتوں کو مانتے ہیں, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا آٹومیٹکلی نظام ہے, سسٹم ہے, یہ خود بخود کیا ہے. یہ میں دلائل کیا دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ تو خدا کو بھی خدا نہیں مانتے, اور اگر کوئی یسوع مسیح کو بھی بیٹا یا خدا نہ مانے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن بائبل کلیئر بیان کرتی ہے یسوع مسیح بیٹا بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے. اور یہاں حوالہ جو میں نے کہا, یسایہ نبی نے تو 700 سال پہلے, کئی نبیوں نے اس سے بھی پہلے, کئی بعد میں یسوع مسیح کے بارے پیشن گوئیاں کی کہ وہ خدا ہے, خداوند ہے. اس کی پیدائش کے بارے, مصلوبیت کے بارے, اس کی دوسری آمد کے بارے الہام میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہاں یہ پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں 49واں باب 10ویں آیت میں, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب باپ بزرگ یعقوب اب خدا کے پاس جانے والا تھا. خدا کے لوگوں کو ہم نے پڑھا ہے کئی دفعہ, پتہ چل جاتا تھا کہ اب ہم نے خدا کے پاس چلے جانا تھا. تو لکھا ہے اس نے اپنے بیٹوں کو, 12 بیٹوں کو کیا کیا, بلا لیا. انہیں پتہ تھا, ایمانداروں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی اولاد کو دعائیں دیتے ہیں ان کی خدا کے سامنے اہمیت کیا ہے. اور اولاد کو بھی, ایمانداروں کی اولاد کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ دعائیں دیتے ہیں ان کا اثر کیا ہے, اور وہ پشت در پشت جاتی ہیں, ہے نا. دعائیں اس لیے ہم کہتے ہیں لیا کرو بزرگوں سے, ماں باپ سے. یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ بڑے چیک دینے سے, بڑا سونا چاندی دینے سے قیمتی کیا ہے. ایک شخص آیا, اس کا ہائی سکول بھی, اسے میں نے یہ ایک بات سکھا دی, یعنی دعا کی برکت کی. تو میں نے کہا کہ دعا, وہ میرے پاس آتا ہے صرف دعا کروانے کے لیے,
ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल है उसका, चलाता है। कहता मैं दुआ को समझ गया हूँ, इसकी बरकत को। कहता आपने मुझे सिखाया था कि ये चेक अगर मैं आपको भर के दे दूं उससे भी बढ़कर है। कोई शख्स, कोई बुजुर्ग या माँ या बाप सोना चांदी ना दे, हैं, चेक भर के ना दे, और अगर दुआ दे तो इसकी अहमियत मैं बताता हूं। मैंने उसे अहमियत बताई कि जब बाप इसहाक ने किसके लिए दुआ की, 2 बेटे थे ना, एक का नाम क्या था, दूसरे का नाम, ऐसा हो, इन शॉर्ट करता हूं, मेरा मौजू नहीं लेकिन मेरे आ गया दिल में, क्योंकि यहां ये वाकया हो रहा है। और जो याकूब को दुआ किसने दी, बाप इसहाक ने, आज तक हजारों साल पुश्त दर पुश्त उसी दुआ का असर है। तो कहता है अब मैं लोगों को गवाही देता फिरता हूं, भाई दुआ बड़ी, कई दफा लोग कहते हैं दुआ ही देंदे और भी कुछ दे। एक मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं कि दुआ बड़ी कीमती चीज है। अगर कोई आपके लिए दुआ करे तो बल्कि उसे कबूल करें, हैं, उसे ईमान से हासिल करें। और यहाँ क्या लिखा है, मैं आता हूं कि बाप याकूब ने 12 बेटों को जब दुआ देनी थी इकट्ठा कर लिया, वो भी इकट्ठे हो गए। बेटिया ने नहीं किया कि ऐसी बाप जी ताड़े को दुआ की लैनी है, जड़ी को जायदाद छड़ के वो तो पहले नहा लाओ। हाँ, लेकिन सारे बेटे, उन्हें भी पता था दुआ देने के लिए क्या हो गए, जमा हो गए। लो जी, बाप दुआ देने लगा है। अब जिनके बुजुर्ग हैं ये जान ले, उनसे दुआ लिया करो। अब दुआ देते बाइबल मुकद्दस में जब यहूदा, 12 बेटों में से यहूदा का नाम आता है, तो बुजुर्ग याकूब ने 49वां बाब 10वीं आयत में यहूदा को बड़ी बरकतें दी, लेकिन एक खास नबूवत भी की। चलो मैं नाम ही ऐसे पढ़ लेता हूं। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, यह यहूदा के लिए है, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दब कर बैठ गया। कौन उसे छेड़े, किसको, यहूदा को। ये बड़ा खास भेद, खास मुकाशफा, यहूदा। अब मैं, क्योंकि मुझे पता है आप कलाम को पढ़ने वाले हो, इल्म इलाहियात से वाकिफ हो, इन शॉर्ट में सवाल करूं ताकि आपकी तवज्जो हो जाए। यीशु मसीह किस कबीले से आया, किस कबीले से? आपको शाबाश देता हूं, मुझे पता है। दाऊद बादशाह किस कबीले से आया है? आपके लिए तालियां बजाता हूं। ये समझना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें इल्म होना चाहिए। और यहां दुआ देते हुए बुजुर्ग याकूब ने यह कहा, फिर 10वीं आयत में, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा माकूफ होगा, जब तक शैलो ना आए और कौमें उसकी मुत्ती होंगी। हालेलुया। जब मैंने पढ़ा है तो आप समझ गए हो। तकरीबन 2000 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, बुजुर्ग याकूब ने नबूवत की कि दाऊद के कबीला से
کیا ہوگا؟ اس کی نسل سے برکتیں یہ ہیں، سلطنت، حکومت یعنی بادشاہت کبھی نہیں چھوٹے گی. اور کیا لکھا ہے؟ اس کی نسل سے حکومت کا عصا کا مطلب کیا ہے؟ اختیار، حکمران، وہ کبھی نہیں چھوٹے گا جب تک شیلو نہ آئے. یہ شیلو کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا لقب. یہ بزرگ یعقوب نے پیشن گوئی اور نبوت کی. خدا نے دعا دیتے دیتے اس پر مکاشفہ، الہام بھیجا. اگرچہ یہ شیلو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے معنی تو ہیں ہبرو، اس کا مطلب بھی ہے پیس، ریسٹ. اور یہ ایک شہر بھی تھا، لیکن یہاں لکھا ہے حکومت کا عصا نہیں چھوٹے گا. یہ یسوع مسیح کا ٹائٹل بھی ہے. اور یہ ایک اپنے نالج کے لیے، دلچسپ کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ ایک شہر بھی تھا، شیلو. یہ یروشلم سے تقریباً 40 کلومیٹر نارتھ سائڈ پر تھا، اور یہاں تقریباً 400 سال تک خیمہ اجتماع یہاں تھا. یہاں لوگ پھر خدا کی حضوری میں سارے جمع بھی ہوتے تھے. اس کا مطلب تھا پیس، ریسٹ، اطمینان. جب تک سلیمان بادشاہ نے ہیکل نہیں بنائی، آپ کے نالج کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، خیمہ اجتماع، جو پہلے خیمہ اجتماع کوہ سینا کے پاس جب مصر سے آزاد ہوئے اور خدا نے حکم دیا، نقشہ دیا، موسیٰ کو کہا کہ میری عبادت کے لیے اجتماعی طور پر جمع ہونے کے لیے کیا بنا لو؟ خیمہ اجتماع. وہاں جمع ہو جانا. وہ تو سارا جنگل ہی جنگل میرا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا جتنے مرضی باتیں کری ہو ہر جگہ موجود ہے نا. موجود تو ہے، لیکن اس نے مخصوص جگہ ہر دور میں ہر وقت کی. پہلے خیمہ کوہ سینا کے پاس تھا نا، لگا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ شیلو، جب آپ بائبل میں سے پڑھیں پرانے عہد نامہ میں، یہ ایک شہر تھا. وہاں انہوں نے اس کے بعد خیمہ اجتماع کو وہاں آ کے لگا دیا، اور ساری قوم اور قبیلے وہاں آ کے کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، قربانیاں چڑھاتے تھے. اجتماعی فیسٹیول جو خدا نے حکم خود دیا ہوئے تھے، 7 قسم کے فیسٹیول خدا نے حکم دیا تھا یاد رکھنے کے لیے، ماننے کے لیے، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برکتیں آپ کو دی ہیں، کیا کیا بڑے بڑے کام کیے ہیں. تم یاد کے لیے، نسلوں کو بتانے کے لیے وہ ساری عیدیں، وہ سارے فیسٹیول کیا کرنا. اور یہاں یہ خیمہ شیلو 400 سال تک لگا رہا. جب ہیکل بن گئی سلیمان کی تو پھر اس کی ضرورت نہ رہی. تو اب جو بات میں کہنے لگا ہوں آپ تو جھوم جائیں گے کہ جب یسوع آ گیا تو پھر ہمیں سلیمان کی ہیکل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. اس نے کہا جہاں تم میرے نام میں جمع ہو جاؤ گے وہاں میں موجود ہوں گا. وہاں میری ورشپ کرنا، دعا کرنا، عبادت کرنا، جلال دینا، میں وہیں تم کو برکت دوں گا. کیسے آپ مبارک لوگ ہوں. پہلے لوگوں سے خیمہ چھوٹا، ہیکل میں آ گئے، ہیکل چھوٹی، 70 عیسوی میں برباد، دوسری بھی برباد. اب وہاں ہیکل نہیں ہے. اب تیسری بنے گی، وہ میرا موضوع نہیں ہے. وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد سے ریلیٹڈ ہے. وہ بھی کسی وقت ہم سیکھ سکتے ہیں.
लेकिन अब वहाँ कोई हैकल नहीं। यीशु मसीह ने हमें ईमानदारों को, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसके पास आ जाते हैं, आज़ाद कर दिया है। अब कोई बिल्डिंग की बात नहीं है कि बिल्डिंग फलां बिल्डिंग में ही उसकी हजूरी है। अब यीशु ने कहा जहां 2 या 3 भी मेरे नाम में जमा हो तो मैं वहां हूं, मौजूद हूं। चलो जब तक ना आए और कौमें उसकी मोती होंगी और असा नहीं छूटेगा। हुकूमत, असा का मतलब क्या है? इख्तियार। किन के पास होता है? रूलर्स के पास। हमारा खुदावन यीशु मसीह अबदी हाकिम, अबदी बादशाह है और वो अबदी बादशाह है, अबदी हुक्मरान है और उसका असा उससे कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद है। ये पेशगोई बुजुर्ग याकूब ने की। चलो जब तक ना आए और कौमें उसकी मोती ना हो जाएं उसकी हुक्मरानी जारी रहेगी, सारी रहेगी। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? क्योंकि वो खुदावंद है, क्योंकि वो हुक्मरान है। सिर्फ चरनी में नहीं पड़ा, अब वो भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को तो सारे पसंद करते हैं ना। आम लोग भी बच्चों को पसंद करते हैं कि नहीं? जो खूबसूरत बच्चा हो, आपने देखा होगा, कहीं लेके जाएं। हमारे साथ तो 1-2 दफा हुआ, जब बच्चे छोटे थे तो जब किसी मॉल में जाते थे तो लोगों को अच्छा लगता था, तो गैर लोग भी क्या कहते थे, ये हम इसे पकड़ सकते हैं। कई औरतें कहती हम इससे प्यार कर सकते हैं। पहले तो हम समझे नहीं ये मेरे दोते, तो फिर किसी ने सिखाया कि ये इनको बच्चा ना पकड़ो मैं क्या ठीक है भी, नहीं तो मैं कहता चलो पकड़ा दो, उन्हें पता नहीं कितना अच्छा। बच्चों को सारे प्यार करते हैं जी, चूमते हैं जी। तो जब हुक्मरान बन जाए थे, हुक्मरान का मतलब क्या होता है जी? इख्तियार। फिर भी हुक्मरानी में रहना चाहते हैं यीशु खुदावंद है, इसका मतलब बादशाह है, बादशाह का मतलब हुक्मरान है। ओके, तो उसकी हुक्मरानी में रहना, उसकी अथॉरिटी में रहना, उसके इख्तियार के नीचे रहना भी हम पसंद करेंगे जी। यीशु बादशाह हाकिम है, या सिर्फ हम क्रिसमस दिन से ना कहिए यीशु बादशाह। जब अंदरूल में मैं पादरी था तो वहां हम एक पार्टी निकालते होते थे। वो बड़ा एक बुरा इलाका था, तो सारे लोग, अब मैं हिस्ट्री नहीं बताता, इशारा काफ़ी है, बहुत 50 साल की बात है। तो वहाँ से हम गुजरते पार्टी लेके हैं, तो दाएं बाएं, अब इशारा काफ़ी है। बड़े लोग पैसे भी लुटाते थे और साथ क्या कहते थे दूसरे भी, उन्होंने टुन का मतलब समझे, पी पू के नाल कहना, नाल पैसे करने, यीशु बादशाह। मैं कह यार है पैसे बाबा देंदे नहीं, यीशु बादशाह। ते बादशाह दा हुक्म ही मनना यीशु हुक्मरान। असा का मतलब क्या है?
इख्तियार। ज़बूर 23 हम पढ़ते हैं, बड़े खुश होते हैं। ख़्वाह मैं मौत के साया की वादी में से गुजर जाऊं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। ऐनी आयत ही पढ़नी है। दूसरी इस आयत के साथ क्या लिखा है, आप बता दें। दूसरी क्या लिखा है इसके साथ ही? पूरी आयत क्या है? क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से, इस वास्ते किसे बला तो नहीं डरांगा। तेरी लाठी भी चल दी है ते तेरा आसा भी चल, तो दोवां दे नाल मैनू की मिलती है? दो चीज़ां पेश कीतियां गईयां, लाठी और आसा। लाठी का मतलब की है? भेड़ां ते है ना, खुदावन तो मेरा चौपान है, कॉन्सेप्ट भेड़ों का। लाठी चरवाहे ने किस लिए रखी होती है? भेड़ों को लाइन च रखने ली। जी उधर दौड़ती कहती इधर आ। चरवाहे को फिक्र होती है कि नहीं? लाठी ना घेरदा, और उधर ना जा, तो टोया ही एवं गिर जाएंगी। और उस तरफ ना जा तो भेड़िए ने तेन फड़ लेना ही, फिर दौड़ती आएंगी। उन्नी देर भेड़ी ने तेरा काम कर छड़ना ही। अच्छा चलो, लाठी भी फेर दे कि नहीं? रहनुमाई कर दे, उसके नीचे से भी गुजरती थी और गिनती होती है। गिनते हूं किन्ने आ गए ने मेरे घर, मेरे बाहर खाने से किन्ने आ गए ने, को रह तो नहीं गया। 1 2 3 चरवाहा देखता रहिंदा, चरवाहा देखदा केड़ा केड़ा आ गया भाई। कई सोटी थले लंघदे। और दूसरा दाऊद बादशाह क्या कहता है? तेरी लाठी और तेरे एहसास है। मेरा लाठी नाली तसल्ली नहीं, बल्कि असा। असा का मतलब क्या है? इख्तियार, हुक्म, हुक्मरानी। तेरी जो गवर्नमेंट है, तेरी जो हुक्मरानी है, तेरा जो इख्तियार है, हम उसके नीचे रह के इत्मीनान हासिल करते हैं। उससे ही हमारी तसल्ली है, क्योंकि उसके इख्तियार में रहना, उसके ताबे रहकर ही। क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस में? खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो, शैतान भाग जाएगा। सबमिशन, खुदा को खुदावन मानना, हुक्मरान मानना, उसकी अथॉरिटी के नीचे, उसके इख्तियार के नीचे, उसकी ताबेदारी में रहकर फिर शैतान का मुकाबला करो। नहीं तो बदुआ ने की किया बाइबल मुकद्दस च लिखिया, कई यसू का नाम लैके ना बदलुआ कढ़न लगे, बदलुआ ने हाल बड़ा बुरा किया। बाइबल में लिखा है, उन्होंने कहा, बदलुआ ने कहा तेनू असी पछाणनी आ। उन्होंने कहा भलूस नूं भी असी जाननी आ, खुदा दा बंदा है, ते यसू नूं भी असी जाननी आ। तुसी किधरों निकले हो? सैल्फ मेड, ना मसाशुदा, ना तुहाडे कोल इख्तियार। तुहानूं ते अज पुछ लेने कि कईयां नूं बदलुआ पैंदियां ने, भावें अज कपड़े नहीं पाड़दियां, कई चीज़ां दा नुकसान कर जो चुने नहीं, मसाशुदा नहीं, बुलाए बने, उन्होंने हाल फिर बुरा ही है। उत्तों सही नजर आते ने, अंदरों सारा काम खराब ही, डरे होंगे ने बेचारे, खौफ ज़्यादा होंगे ने।
ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ खोखला ही हूं। लेकिन दाऊद बादशाह क्या कहता है, तेरी लाठी से भी किया है और तेरे अच्छा से उन मैनू ये दसो दोवें चीज़ें चाहिए या एक कोई, दोवें चीज़ें चाहिए। और फिर ये भी मैं आपको बरकत की बात बताता हूँ, अगर हम उसके इख्तियार उसकी गवर्नमेंट के नीचे रहेंगे तो शैतान आपको छू नहीं सकता। पतरस के खत में लिखा है, तुम पहले कोई कौम ना थे लेकिन अब क्या हो, शाही कहनों का फिरका और बरगुज़ीदा नस्ल और खुदा की उम्मत। और अगे एक होर लफ्ज आप ही बोलो ताकि मैनू भी याद हो जाए तानू ही। शाबाश, वास्ते तालियां मारो। क्या लिखा है, यह इतों तक ही रहती है जी, अगे नहीं ये भी छपा ली लफ्ज है, लिखा खास मलकियत। मालिक कौन है, खुदावंद कौन है, मलकियत किसकी है, किसकी है, खुदावंद की। इसका मतलब ऐसा, इसका मतलब है खुदावंद। और फायदा क्या है, मैंने कहा फायदे की बात बताता हूं, जब हम उसकी मलकियत है, खुदा की मलकियत पर कोई कब्जा कर नहीं सकता है। अगर हम खुदा की प्रॉपर्टी हैं, किसकी मजाल कि शैतान आपको छू जाए। इसलिए लिखा है बाइबल मुकद्दस में, रोमियो के खत में, कि गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने दुनिया की अक्लों को अंधा कर दिया है। हम खुदा जो इन दुनिया का है उसकी मलकियत नहीं है, हम खुदा की मलकियत है। जो दुनिया का खुदा है या गुनाह जो एक बादशाह की तरह इख्तियार रखता है, हम उसके इख्तियार में नहीं, हम यीशु मसीह की मलकियत है। अब जो ईमानदार है वो मजबूर नहीं, गौर से सुन लें, गौर से सुन लें, लक्ष्य कर लें। जो मसीह की मलकियत है वो मजबूर भी नहीं और बेचारा नहीं कि गुनाह और शैतान उस पर इख्तियार रखे। अपनी मर्जी से चला जाए तो चला जाए, लेकिन अगर यीशु का इख्तियार है आपको कोई छू नहीं सकता, आप पर बादशाही नहीं कर सकता, आप पर हुकूमत नहीं कर सकता, क्योंकि आप पर हुकूमत करने वाला तो खुदावंद यीशु मसीह है। आप तो उसकी मलकियत हो। बाइबल में लिखा है, खून और कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। यीशु खुदावंद है, यीशु आका है, यीशु मालिक है, यीशु मास्टर है। जब वो हमारी जिंदगी का बादशाह होगा, हाकिम होगा, वो हुकूमत करेगा हम पर, हमें शैतान नहीं छुएगा, शैतान का हम पर इख्तियार नहीं होगा। हम जाने, अपनी हैसियत को पहचाने कि हम कोई आम लोग हैं, हम तो खुदा की प्रॉपर्टी हैं, हम तो यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हैं, हम तो यीशु मसीह की मलकियत है। हमारा बादशाह कौन है, हमारा हाकिम कौन है, हमारा मास्टर कौन है और हमारा खुदावंद कौन है। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा भी है और यीशु मसीह खुदावंद भी है, खुदावंदों का खुदावंद है और बादशाहों का बादशाह है। गॉड ब्लेस यू।